Good morning, students. Today we are going to study about introduction. Introduction related to economics. The first chapter, the very first chapter in your microeconomics. I hope it has been very clear to you. So the first chapter is introduction to economics. Right. Now, first of all, we have to understand that what is economics, why we are studying economics, what is the basic reason behind it, and what are the basic background which is related to economics, due to which economics is being studied and has become a very important subject in your syllabus. So all such things we are going to study here in chapter number 1, that is economics. I hope it is very clear to you. Fine. So first of all, in order to understand economics, we have to understand the basic background behind the economics. First of all, we have to understand this, that Adam Smith was the economist who is known as the father of economics. I will not say that he was the very first person who has studied economics, but I will say that he is known as the father of economics. As we all know that the first known person who has studied economics is Chanakya. But the father of economics is Adam Smith. Adam Smith is known as father of economics. I hope it has been very clear to you. Why he is known as father of economics? Because in 1776, Adam Smith's book was published. It was the very first book which was published in 1776 exclusively on the subject of economics. Now, the name of that book was Enquiry into the Nature and Causes of Wealth. Into the Nature. The name of this book. That how the wealth is coming into the nature and what are the causes of the wealth. Why wealth is needed by human being. All such things were being published in his book. And this book was a very first exclusive book, only book which is known to us for economics. Now, we have to understand now what is economics, what is the definition of economics. हमें ये जानना जरूरी है कि economics क्या है, economics की definition क्या है, what are the different aspects of economics we are going to study here. So, in order to understand that what is economics, so we are going to study like this in 2 points so that we will be understanding it very clearly. A branch of social science, what is it? It is a branch of social science. It is a social science. Social science means the science which is related to society, behavior of the people, those who are living into the society. So, economics is also dealing with the economic behavior of the people. How the people is earning the wealth, how the people is spending their wealth, what all activities they are doing in order to earn the wealth. All such things are related with social science. I hope it has been very clear to you. Now the second thing, it studies the economic behavior of an individual in the nation. That I have already told you. That what is economics teaching you? Economics is teaching you that what is the economic behavior. एक इंसान का economic behavior कैसा है, कैसे वो कमाता है इनकम, क्या क्या एक्टिविटीज करता है उस इनकम को कमाने के लिए, कौन कौन से काम करता है उन इनकम को कमाने के लिए, और क्या क्या चीजें वो इनकम किन किन चीजों के अंदर उस इनकम को वो स्पेंड करता है. तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इकोनॉमिक बिहेवियर में आती है एक इंडिविजुअल के. तो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाती है हमें? इकोनॉमिक पढ़ाती है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल, कि हाउ द पीपल इज बिहेविंग, इकोनॉमिकली बिहेविंग हियर. दैट इज बीइंग टॉट इन इकोनॉमिक्स. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू. नाउ द थर्ड थिंग इज it is related to finding the solution. Now, यहाँ हमने पढ़ लिया, we have already studied
नाउ हम इसमें अब थर्ड चीज में क्या पढ़ेंगे, इट इज रिलेटेड, वेयर इट इज रिलेटेड, कि हमने ये तो जान लिया क्या क्या काम कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, कहाँ से ला रहा है पैसा, ठीक है, परंतु हमें एक उससे रिलेटेड एक सॉल्यूशन भी चाहिए। सॉल्यूशन क्या, पहले तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए तभी तो हम सॉल्यूशन डालेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अब ये बात सबको पता है कि वी आर हैविंग अ स्केर्स मींस, स्केर्स मींस द अवेलेबल थिंग्स विद अस इज वेरी स्केर्स, बहुत लिमिटेड चीजें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लैंड की बात करें लिमिटेड है, वाटर की बात करें लिमिटेड है, फॉरेस्ट रिजर्व्स है लिमिटेड है, मिनरल वेल्थ है लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो हमारे पास है ही नहीं। तो जब वो जो लिमिटेड चीज है उस पे हमें हमारी इनकम को खर्च करना है, वी हैव टू स्पेंड आवर इनकम ऑन दैट लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, पहली चीज। तो हमें एक ऐसी चॉइस करनी है जो हमें क्या हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल हो मतलब जो हमें बहुत ज्यादा क्या दे, बहुत ज्यादा क्या दे, हमें प्रॉफिट दे, हम लोग कम खर्च करें, वी शुड स्पेंड वेरी लिटिल एंड वी शुड गेट मोर एंड मोर आउटपुट, हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट या सेटिस्फैक्शन उससे मिले। तो हम ऐसी कौन सी चीज की चॉइस करें, what choices has to be made by us, so that choice, so it is related to finding solution। पहला to make choice, choice मैंने बताया कि choice between what, हमारी wants तो अनलिमिटेड है, हम चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें कार भी मिल जाए, हमें ऐसे सब कुछ की चॉइस रखते हैं, पर हमारे पास इनकम बहुत लिमिटेड है। बस उस लिमिटेड इनकम में हम उस अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, तो उसके फाइंडिंग सॉल्यूशंस को फाइंड करने में क्या हेल्प करती है, इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। इट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू मेक चॉइस बिटवीन व्हाट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्केर्स मींस वेरी लेस मींस, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब स्केर्स मींस मतलब हमारे पास अनलिमिटेड चीजें हैं, बहुत स्केर्स है, unlimited, we both think I have already explained you. Now what is alternative uses? Alternative uses means, for example, for this we are taking milk. Milk is a very scarce resource, we know that. Very limited quantity of milk is being with us. ठीक है? With this limited milk, what we have to do? We have to make paneer, we have to make ghee, we have to make curd, we have to make buttermilk. Every uses we have to make sweets also, so the uses are very much high, but the limited resources are with there, so we have to make the choices that इतने, अगर कोई ऐसी चीज है हमारे पास में जिसके uses तो बहुत सारे हैं पर लिमिटेड क्वांटिटी में वो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हम किस तरीके से यूज करेंगे। आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू। सो नाउ कंक्लूडिंग करते हैं टोटल डेफिनेशन को। जब हम इकोनॉमिक्स की तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। आई होप इट इज बीन क्लियर टू यू। सोशल साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड नेशन। एक इंडिविजुअल या नेशन के इकोनॉमिक बिहेवियर को क्या करती है, ये स्टडी करती है। इट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग सोल्यूशन, क्या करना, उनको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड टू मेक चॉइसेस। चॉइसेस किसके बीच में, अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्केर्स मींस, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो दिस इज द 3 points which is giving you the proper definition of economics. I hope it has been very clear to you. Now coming to the next topic of your chapter, that is scope of economics. Scope means where we are making use of the economics. That is called scope of economics. Scope of economics, in scope of economics, we will be studying 2 types of economics. Mainly these 2 types of economics are being studied under this head. What is it? First is microeconomics. Second is macroeconomics. I hope it is being clear to you. First of all, we will be coming to microeconomics. See,
price theory. Price theory, why? Here in macroeconomics we are studying that we are determining what should be the price. At which price the consumer will be satisfied. Understood? Further we will be going, I will be explaining you more detail about the price theory. Microeconomics or price theory, or the economics which deals with small units, small individual units, जैसे कि कोई इंडिविजुअल की इकोनॉमिक बिहेवियर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या किसी फर्म की कर रहे हैं, या किसी इंडस्ट्री की कर रहे हैं. जब हम लोग स्मॉल यूनिट की हम लोग स्टडी करते हैं, when we are studying a small economic behavior of a small individual's firm या industry, then it will be known as microeconomics. It is also known as the price theory. Price theory because in this determination of price is being done here. In microeconomics, what all things we will be studying? क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर? देखिए, सबसे पहले कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन्स व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल. क्या क्या चीजें कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है टू गेट सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए जो जो चीजें वो कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन. हम कंजम्पशन के अंदर उसको पढ़ेंगे और उसका मेन क्राइटेरिया होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. कंजम्पशन के अंदर क्या बात करें? कंज्यूमर इसके अंदर हम लोग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को पढ़ते हैं. आई होप इट इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू. नाउ सेकंड थिंग, प्रोडक्शन. इसके अंदर यहाँ हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देना है, इसके अंदर हम लोग प्रोड्यूसर्स को पढ़ते हैं. प्रोड्यूसर्स मीन्स the people those who are engaged in converting the raw material into the finished goods. So हम लोग यहाँ किसको पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर्स को पढ़ेंगे. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. अब प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए? या तो कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन. यहाँ प्रोड्यूसर्स को चाहिए प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट. वो जो भी माल बनाए उसमें उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. कैसे मिले? हम लोग प्राइस डिटरमिनेशन थ्योरी, माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी से हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं. दिस एक्सचेंज हियर मार्केट टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मार्केट स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं. मार्केट स्टडीज हियर मींस दैट मार्केट में जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो उसके अंदर मार्केट में इक्विलिब्रियम है या नहीं है. इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर्स को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, और प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा. डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर है, डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर और इक्वल है. ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जो मार्केट में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर है वहाँ वो गुड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं. आर द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड properly or not? All such things we are studying in distribution. And economic welfare. Economic welfare means each and every sections of the society should get whatever they require in the economic sense. Like that is economic welfare. Like consumers satisfaction, producers profit, market equilibrium, priority sectors are the available goods, and economic welfare comes in that. So all such things we are going to study in the microeconomic studies. Now the second branch of economics or scope of economics we are studying is macroeconomics. Macroeconomics means study of large means big economy, nation's economy. We are studying the economic welfare of the whole nation as a whole. We are taking the whole nation, a big unit as one unit, and we
are studying that. तो all such things we are studying that. मैक्रो इकोनॉमिक, अब इसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि कैसे एक पर पर्सन हमें इनकम इंक्रीज करनी है, कैसे जो पूरे नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है उसको हमें सॉल्व करनी है, वो सारी चीजें हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं. आई होप इट इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू. सो macroeconomics, study of large, the whole economics, aggregate study, income and employment theory is also being known as macroeconomics. अब सबसे पहले microeconomics was studied by Marshall. Marshall was a economist who has studied microeconomics, and macroeconomics was studied by G.M. Keynes. These are the two economists who has done a very good work in these two branches of economics. Now, what all things we are going to study in macroeconomics? Macroeconomics में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं तो नेशनल इनकम, हमारी टोटल नेशनल इनकम क्या है? जब तक हम लोग ये डिटरमाइन नहीं करेंगे कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, जब तक हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी इनकम हमें कम करनी है, ज़्यादा करनी है, या अवेलेबल इनकम जो ठीक है हमारे नेशन के लिए या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी इनकम क्या है. तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इनकम. सेकेंड, जनरल प्राइस लेवल. जो जनरल प्राइस लेवल को जनरल कमोडिटीज, जो हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने पढ़ा था. जनरल प्राइस इंडेक्स नेशन का कितना है, कितनी इन्फ्लेशन रेट है, कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो जनरल प्राइस लेवल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होल नेशन, पूरे नेशन का किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे देश में विदेश में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, माल का किस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर्स को देखना है, प्रोडक्शन सेक्टर को देखना है, पूरे इंडिया को, पूरे नेशन का कंज्यूमर सेक्टर्स को देखना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए किस तरीके से प्रोडक्शन करना है. ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी. आई होप दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. फर्दर हम लोग इसको आगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे कि टॉपिक्स लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है मैक्रो, वो इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स का. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ